Nandan has scored 210 marks in the interview, which happens to be one of the highest marks. And that's indeed, I would say, that vouches for your strong communication skills and the personality that you have groomed over the years. Now, let's come to the prelims is coming up. Now, civil services prelims 2024 is coming up. So, what is your advice and strategy to the aspirants? Because I think a couple of months are left only. So, what is your advice to all the aspirants who may be going through a lot of self doubt, who may have failed in prelims, may not have been able to clear prelims even once, may have been having issues with CSAT में issue है उनको, या economics उनको strong नहीं है, या कोई भी एक particular section, yeah, maybe they're having certain family issues, not able to study, they are in their last attempt. So, what is your advice to them? What lesson can they draw from your experience so that they are able to at least manage the minimalist strategy they can use? If I were to tell something to them, it is just keep it simple. The more complex you make it, the more difficult it will be to clear the examination. So be very simple in the strategy that you have. Until now, what you have studied, do not add anything new. Revise as much as possible and practice as many tests as possible. This is the preparation part. And another advice which I would like to give is for the day of the examination, particularly for CSAT, because CSAT sometimes becomes tricky. So CSAT, the secret is to let go. Let go the questions that you do not know as soon as possible. We can do the maths some other day, but if there are 15 to 20 very difficult questions which you think you will not be able to do, the secret is those 20 questions have to be left within 15 minutes. You will have 1 hour and 45 minutes for the remaining 60 questions. And if you are able to attempt even 50 out of them and get even 15 wrong, you are through. Absolutely. I think you rightly pointed out that it's important to know which ones not to attempt and rather than which ones to attempt as well. Because sometimes we get too emotional कि यार ये सवाल तो करना ही है. तो you sit on solving maybe a maths question 5 मिनट बैठ गए उस पर, तो उस 5 मिनट में आप मे बी 2 से 3 सवाल कर सकते हैं जो मे बी एंड में ईजी भी हो सकते हैं. तो आई थिंक ये बड़ी सही बात आपने बताई है कि CSAT के लिए पर्टिकुलरली जिनका मैथ वो स्ट्रांग नहीं है, तो हाउ कैन दे प्ले द एवरेजेस करेक्ट? इसमें आई थिंक आई वाज रीडिंग अ कपलेट अ few days ago in which the writer was trying to say that somebody who is a warrior, he will win most of the battles that he fights. But somebody who knows when to fight and where to fight, yes, he will win every battle that he fights. So I think you just need to decide which question, वो कौन सा सवाल है जहां आपको लड़ना है. अगर आप उस सवाल से लड़ेंगे जो आपको आता नहीं है और उस पर अगर आप 15 मिनट ज़ाया करेंगे, तो वो एक उर्दू की कहावत है कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, उसको हालात ही ना छोड़ेंगे जो खुद को हालातों पे या यूपीएससी प्रीलिम्स के सवालों पे छोड़ेगा. एब्सोल्युटली, वेरी राइटली, वंडरफुली सेड, वंडरफुल. तो प्रीलिम्स में अगर हम जीएस की बात करें, तो जीएस की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है डिफरेंट सेक्शंस को लेके? व्हाट इज द अप्रोच? अगेन वेरी सिंपल, जो बेसिक बुक्स हैं उसी पे स्टिक करना है, नई चीज़ नहीं पढ़नी है. जितनी ज़्यादा बार उसको रिवाइज करोगे, इन एडिशन जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यूज पे फोकस रखिए. जब पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बारे में कई बार बच्चे पूछते हैं कि एनालिसिस का मतलब क्या है. एनालिसिस का मतलब है आप पीवाईक्यू देखिए सब्जेक्ट वाइज. सपोज हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो हिस्ट्री का सवाल देखिए कि कहाँ से पूछा गया है, कौन कौन से वो हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं. तो पढ़ना तो पूरा किताब है आपको, बट उन चैप्टर्स पे आपको खास ध्यान रखना है सो दैट वहाँ से अगर सवाल आता है तो वो आपको मिस नहीं करना है. तो वैसे ही जो आपकी 10 बुक्स 12 बुक्स जो आपकी हैं बेसिक, इन एडिशन आपको करंट अफेयर्स के नोट्स आपके रेडी होंगे, तो उसको रिवाइज करिए. जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे और जितना सिंपल उसको रखेंगे, उतना ही ज़्यादा कारगर आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो हो पाएंगे. So the idea is one book per subject, and it's like the man who has practiced a move 1,000 times is much deadlier than the one who has practiced 1,000 moves once. So that's the idea. सब्जेक्ट वाइज अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मतलब पॉलिटी जैसे बुक लिस्ट अगर आप ब्रीफली अगर बताएं, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ फ्रेश यंगस्टर्स हु विल बी जॉइनिंग बिकॉज you are giving their first attempt, or maybe they're thinking maybe in their second or third year of college, तो उनको एक आपको क्या बताएंगे कि एक बार यही बुक पढ़ लीजिए,
because out of the experience they might not have to go here and there. तो बुक लिस्ट से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बुक लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने बुक से पढ़ा है उस पे स्टिक करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूँ आपको उसी से पढ़ना है, बट शर्त ये है कि जो भी बुक से आपने पढ़ा है, सपोज हिस्ट्री मैंने रमेश सिंह से पढ़ी है, आपने कि नितिन सिंघानिया से पढ़ी है तो नितिन सिंघानिया से स्टिक करिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि रमेश सिंह से पढ़ी है मैंने, तो आप अपना नितिन सिंघानिया 80% आप खत्म करके आप रमेश सिंह पे जंप करें। Right. तो जहाँ से भी आप पढ़ेंगे माइनर वेरिएशन हो सकता है सोर्सेज में, बट द सीक्रेट इज जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसी पे टिके रहिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। एक आध क्वेश्चन आपने प्रीवाई की उसमें या फिर अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे कि जो आपकी किताब से नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना सोर्स बदल दें। आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं बट आपको सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है। Right. अभी मैंने जो सोर्सेज यूज करी हैं, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, ये 3 बुक्स जो हिस्ट्री की पढ़ी है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री की कोई किताब नहीं पढ़ी। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी इंडिया की और फिजिकल ज्योग्राफी 2 ही पढ़ी हैं। जीसी लियोंग की किताब है जिसके सेलेक्टिव कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी का भी मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो रमेश सिंह जो कि बड़ी अच्छी किताब है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि नितिन सिंघानिया पढ़नी चाहिए, उनको सजेस्ट करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। एम है कि आप जो भी बुक पढ़ें उस पर स्टिक करिए। उसके बाद पॉलिटी लक्ष्मीकांत सब सजेस्ट करते हैं तो लक्ष्मीकांत इज द बाइबल। That's the Bible. उसके बाद हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की तो वो भी मैंने नितिन सिंघानिया से पढ़ी है। इसके अलावा आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए हमने शंकर आईएएस की किताब पढ़ी है, वो भी काफ़ी सेलेक्टिवली पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा इट्स ऑल करंट अफेयर्स, Right. यही लिमिट। Current affairs कहाँ से पढ़ना चाहिए कुछ? करंट अफेयर्स मैंने विजन से पढ़ा है, इनसाइट से पढ़ा है, बट मेरा एडवाइस यही है कि कोई भी एक सोर्स का मंथली कंपाइलेशन उठा लीजिए, वहाँ से अपने नोट्स बना लीजिए, और वंस वो नोट्स आपके रेडी हो जाते हैं, प्रीलिम से पहले 5 से 6 रिवीजन आपने उसकी करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। दैट इज द सीक्रेट। देखिए मॉक टेस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस होती है। समटाइम्स स्टूडेंट्स फील दैट सिर्फ टेस्ट लगाना है, वो नंबरों से हताश हो जाते हैं, बिकॉज जो मॉक टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के होते हैं दे डोंट रिफ्लेक्ट द यूपीएससी का एक्चुअल एग्जाम। दे आर जस्ट मेड बाय मे बी पीपल हु आर ऑल्सो लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और मॉक टेस्ट को यूज़ किस तरह से किया जाए अच्छे से? सबसे पहले देयर इज नो फिक्स नंबर कि आपको 50 लगाने हैं, 60 लगाने हैं। आप जितना मैक्सिमाइज कर पाएंगे उतना कम है। मेरी तरफ से आप 50 लगाइए, 100 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका रिवीजन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और गिवन जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आप जितना मैक्सिमम लगा सकें, कोई लिमिट नहीं है। नंबर इज कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मॉक टेस्ट लगाए भी क्लियर करते हैं, Absolutely. कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 मॉक टेस्ट लगा के क्लियर करते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द गुड नंबर फॉर यू। मॉक टेस्ट लगाने का जो एनालिसिस है दैट इज इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे पहला एम है वो ये है कि आप वो जो 2 घंटे बैठने का जो पीरियड है, आप अपनी बॉडी को उसको साथ अडाप्ट कर लीजिए, सो दैट जो एग्जाम के 2 घंटे हैं जिस दिन आप बैठोगे तो आपको मेंटली कोई ऐसे लेथार्जी ना हो कि आपको 2 घंटे बैठना मुश्किल ना लगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जब आप 15-20 मॉक टेस्ट लगाएंगे, पूरा उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, तो फिर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना है, और बिल्डअप करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। एकदम एकदम।